Hello. In this video, we'll study the chapter Blue Bead. This story is about a girl called Sibia who is comparatively small but has the courage of a grown-up human being. So this Blue Bead title is a symbolic reward of the girl Sibia who has the power to go against the adversities of life and win a reward. So let us study the chapter line by line. So the story begins in a jungle, in a very dense rural setting. So the very first line introduces a character. So the first line says, "From deep water came the crocodile." So it was a river, and the river was very long stretch. Some part of the river was not very deep. The water was shallow. Some part of the river was very deep. So where the water was deep came the crocodile. So here, crocodile is not just a animal in the story. Here the crocodile is a character. Is described as a human being. Is described as a villain. Is described as a person who has all the attributes of a living human being. So in the exam, they will ask you to describe the crocodile. So this description is very significant. Out of the black water, cowed with willful, into the frills of golden shallows of the stepping stone. The second stanza is, second paragraph is the description of the river. That the river water was very black and they were willful. Willful means when the water moves in a circle, it is called willful. So काला पानी था, पानी एकदम ब्लैक कलर का था, पानी ऐसे घूम रहा था और वहाँ कुछ शैलोज थे, मतलब पानी वहाँ डीप नहीं था, ओके, और वहाँ कुछ पानी का बुलबुला जैसा हो रहा था. सो वहाँ स्टेपिंग स्टोन था और उसके काले पानी से विलपुल से स्टेपिंग स्टोन मतलब एक स्टोन होता है जिसपे लोग पैर रख रख के रिवर को क्रॉस करते हैं. तो वहां से एक क्रोकोडाइल निकला. So let us see the description of the crocodile. The crocodile is twice the length of a man. Suppose my normal human being's length is say 5.5 foot, 5 feet, 5 feet. So this crocodile is twice the length of a man. Inside him, along with the stone, he has eaten a silver bracelet. So crocodile was eating so many things. So along with so many things, crocodile ने एक bracelet भी खा गया. Of course, crocodile digestion is much stronger than human beings, so he probably can digest it. So he had swallowed it. The author is saying in a humorous way, in a funny way, he has eaten it to help him to digest. But the crocodile, without differentiating one thing with the other, वो खाते खाते ऐसे वो गाय लोग प्लास्टिक खा लेते हैं. The crocodile has eaten along with so many things. He has eaten a silver color bracelet. So the first three stanzas about crocodile. Crocodile कहाँ रहता था, काला पानी था, willful था, shallow water था, वहाँ बहुत सारा झाग था, stepping stone था, वहाँ से निकला. Third stanza is about the description of crocodile. कि crocodile का लेंथ जो था एक इंसान के डबल था और वो सब कुछ खा सकता था. मतलब so much so that the crocodile can even eat a silver bracelet. Next paragraph is about Indian culture. Is about how Indian people have different ways of jugaad. They have many ways to make their life keep moving. So, and Indian people, since they are very poverty stricken, they have to somehow find their own methods to do things in their own way. So next, timber was being floated down the great Indian river from forest up farther, and the slippers lying struck around the stones
until someone came to dislodge them and send them on their way, until the flood lifted them and jostled them along. The crocodile had no need to hide himself. He came to rest in the grassy shallows among logs and balanced there on the tiptoe on the ripped sand, which is raised hairs out of water and raised nostril beneath the clean sunny air. So timber को लोग पानी में ऊपर पहाड़ पे टिम्बर को काट काट के पानी में छोड़ देते थे. सो रिवर के साथ फ्लोट होते 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 जैसे जैसे रिवर और रास्ता था, वो टिम्बर फ्लोट होते होते आके एक जगह अटक जाता. एक पत्थर था वहां, फिर कोई आदमी आता वहां से उस टिम्बर को ले जाता. तो दिस इज अ क्रिएटिव वे फ्रॉम द माउंटेन till the lowermost portion of the mountain or at the ground. If they have to hire a transport, then it will be very expensive. और ये सब इलाके में बहुत कम लोग होते हैं. So it is easier for people to do this. It's not possible in a metropolitan city like कोलकाता कि कोई वहाँ टिम्बर काट के छोड़े तो आधा दूर में गायब हो जाएगा. बट ये लोग यहाँ कम होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं. सो टिम्बर को वो लोग काट के पहाड़ के ऊपर से जो रिवर जाता उसमें लोग छोड़ देते. तो रिवर के पानी के थ्रू फ्लोट होते होते फार्दर अप द फॉरेस्ट वो जो स्लीपर सोया हुआ लकड़ी कट के आके एक जगह स्टोन में अटक जाता है. वहां से कोई उसको रिमूव करके ले जाता है. Until flood lifted them, jostled them. एक आता फिर कभी और तेज पानी आता फिर दूसरा स्लीपर दूसरा स्टोन जो है एक मतलब एक स्टोन यहाँ ऐसे रखा हुआ है और एक लकड़ी आके यहाँ अटक जाता है. फिर दूसरा आके उसको पुश करता है, तीसरा आके करता है. So this stanza is about how people in Indian villages use their ingenious method of transport. So one such example is that these Indian people, they cut the branch of the tree, the timber wood, the trunk of the tree, and they let it flow into the with the flow of the water from the mountain. तो पहाड़ के पानी से बहते 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 नीचे आता है. एक बहुत बड़ा स्टोन रहता है जहाँ अटक जाता है, फिर दूसरा आके वहां अटक जाता है. फिर उन्हीं के कुछ लोग होते हैं जो यहाँ से उसको उठा के ले जाते हैं. अंटिल एक में दूसरा जौसल करने लगता है, मतलब एक आके एक लकड़ी आके अटकता है फिर दूसरा आके उसको ठेलता है. सो ये सब इलाका एकदम खाली है, मतलब यहाँ लोग कम होते हैं. इट्स नॉट लाइक मुंबई मेट्रो लोकल ट्रेन जहाँ इतने लोग हैं कि भूत नहीं आ सकते. यहाँ उल्टा है. दिस इज अ वेरी कंपैरेटिवली अ वेरी पीसफुल प्लेस. Nobody is there all around. Okay, this is a very old story. अब तो गांव में भी बहुत भीड़ होता है. So this is a time where there were very few people in the villages, and crocodile had need to hide himself. Crocodile को कोई दरकार नहीं है कि वो यहाँ कहीं छुपे, क्योंकि इससे छुपे कोई है ही नहीं. There is nobody to hide himself from. He came to rest in the glassy shallows among the logs. So यहाँ जो कम पानी था, जो एकदम चमकने जैसा पानी था और लकड़ी के बगल वो थोड़ा धूप खाने आया था. मतलब he had come to जैसे वो अमेरिका से यूएस से लोग आते हैं ना इंडिया में सन बाथ लेने. सो मिस्टर क्रोकोडाइल भी थोड़ा सन बाथ ले रहे हैं, सूरज का रोशनी विटामिन डी ले रहे हैं. सो ये चलते कैसे मिस्टर क्रोकोडाइल? मिस्टर क्रोकोडाइल चलते ऐसे टिप टू ऑन द, बुक में लिखा टिप टू ऑन द रिप्ड सैंड. रिप्ड सैंड मतलब ना ऐसे ऐसे सांप जाने का जैसे रास्ता होता है वैसे सैंड है, वैसे ऐसे ऐसे वेव जैसा. और ये क्रोकोडाइल जो है इट वॉक्स ऑन द टू ऑफ इट्स फीट विथ ओनली इज रेज्ड आईज आउट ऑफ द वाटर. और क्रोकोडाइल का पूरा बॉडी पानी में होता है, सिर्फ आंख जो है पानी के ऊपर ऐसे होता है, सो दैट इट कैन लुक एट द प्रे. यहाँ क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? ये जो लकड़ी आके जमा होता है, क्रोकोडाइल उसके बगल में सोया रहता है. किस लिए आता है क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल धूप खाने के लिए आता है. क्रोकोडाइल कम्स टू एंजॉय द सनलाइट. एंड क्रोकोडाइल द पार्ट ऑफ द बॉडी, all the part of the body, almost all the part of the body is hidden in the water except the eyes. इतना पानी में रहता है, ऐसे दिखता है. It raised only his eyes above the water and some part of the nostril, थोड़ा सांस लेने के लिए नाक भी ऊपर रहता है. So क्रोकोडाइल का आंख और मुंह तो ऐसे होता है ना, so थोड़ा सा नाक और आंख ऊपर होता है.
Okay, so why? नाक क्यों सांस लेने के लिए और आंख क्यों? प्रे लोग को देखने के लिए. The crocodile is intelligent. Mr. Crocodile के पास अक्ल. Okay. Now the next part of the uh, story is the description of crocodile from a very psychological point of view. Not how crocodile looks, but what we feel about crocodile. See, around him there are sparkling water between cliffs, grass, and forested hill. A jungle track came out of the scrub on each side down to the sun-whitened stepping stone, which a little flycatcher was flirting and trilling around. A mugger crocodile, blackish brown above and yellow-white under, lay motionless, able to wait forever till the food came. This antediluvian saurian, this prehistoric juggernaut, ferociously and formidable, a vast force in the water, propelled by the unimaginable and irresistible power of the huge tail, lay lapped by ripples, a throb in its throat. His mouth, running almost the whole length of the head, was closed and fixed in that evil bony smile, where the yellow underside came up to it, its tinge of green. So ये crocodile का description है. Now, no animal is evil. No animal is evil. All animal can be evil at times if necessary comes. But human mind somehow has associated some animal as villain and some animal as good. Now there are various reasons for it. Some they look very dangerous, so we have associated danger with them. Some have been made to look evil because of the mythological representation of those animals. Some animal are called ferocious, dangerous, negative, evil because they can kill. Now, say for example, rabbit. Irrespective of whichever religion a person is, rabbit is always associated with something good because they look so cute. And snake, by its very look, is so formidable, so dangerous, bhayanak, horrible. So in most religion, snake has been made a villain. Now, like we have caste, okay, ये आप ऊंचे जात का, नीचे जात का, ये अमीर, ये गरीब, class. In animal world also, I very strongly believe there should not be a caste. Crocodile is as loving or as animal as any other animal is. But here in this story, since crocodile looks very horrible, dangerous, formidable, has been presented as a villain. So we will go by the description of what the author says. So let's see. Around him stood the sparkling water between cliff and the grass and the forested hill. So जहाँ ये crocodile खड़ा है, crocodile के बगल में पहाड़ है, cliff है, mountains है, चारों तरफ grass और forest है. A jungle track came out of the scrub. मतलब जंगल से एक रास्ता है, चारों तरफ green plant है. And the sun whitened stepping stone on the flycatcher. मतलब एक कुछ stone है पानी में रखा हुआ, वहाँ एक बर्ड जो है इधर से उधर घूमे जा रही है. और वहीं पे एक मगर क्रोकोडाइल है ना. मगर इज अ स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल. जैसे आम में होता है लंगड़ा, हेमसागर एंड सो मेनी अदर. सो दिस इज अ स्पीसीज ऑफ मैंगो. सो देयर इज अ स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल. फिश का भी होता है ना, हिल्सा फिश और क्या स्टार फिश. तो दिस क्रोकोडाइल, इसका मतलब स्पीसीज का नाम है मगर क्रोकोडाइल. सो कैसा होता है? इट्स अ ब्लैकिश ब्राउन above और येलो व्हाइट अंडरले. मतलब ये इसको ऊपर का हिस्सा जो है ये ब्लैकिश ब्राउन होता है. पेट्टू का हिस्सा, स्टमक का हिस्सा, ये जो है ये येलो ही व्हाइट होता है. मतलब येलो कलर का ऊपर का ब्राउन होता है. You must have seen in movies. Lay motionless, able to wait forever till food came. So वो ऐसे पड़ा रहता until the prey will come. So ये उसका nature has given crocodile an infinite patience to wait very peacefully till उसका शिकार आ जाए. बस एक बार शिकार आने के बाद अचानक से न very powerful mode it becomes and snatches the prey. So crocodile has the power to wait for a very long time till the animal comes. This is antediluvian saurian.
Now here the author is using a word to give a special characteristic to this bird, this animal. Here the word antediluvian is very significant. So this diluvian word is from Bible. According to Bible, there was a flood created when the world had become very wicked, very negative. So God decided that he will destroy the whole world. So he raised a flood. So only Noah, Noah the prophet, and his wife and few creatures were left on the boat, were able to survive in the boat, and the whole world got destroyed. So the world was destroyed, and then the world was recreated from the Noah's time, according to Bible. So there's a time before that flood, and there's a time after that flood. So वो flood आया था, 40 दिन पानी हो रहा था. So the whole world was destroyed, and this boat, very big boat, kept on floating. Sorry, and yes, flowing along with the current of the water. वो 40 दिन तक बारिश होता रहा, पूरा दुनिया बर्बाद हो गया, फिर से दुनिया स्टार्ट हुआ. सो बाइबल के हिसाब से वो तूफान आया था नोआ के टाइम में, 40 दिन का बारिश हुआ था, उससे पहले का टाइम और उसके बाद का टाइम. सो हियर द ऑथर इज सेइंग कि ये क्रोकोडाइल उस फ्लड से पहले का क्रोकोडाइल. Of course, not true. Here, the author is making a hyperbole to create his character. I mean, crocodile, very, very old, very powerful, very strong. Purana dikha ke, of course, crocodile cannot survive in literal sense, in scientific sense. A crocodile that was before the flood in Bible, before the rainfall in Bible, before the storm in Bible, तूफान आया था नोआ के टाइम में, उससे पहले का क्रोकोडाइल नहीं हो सकता है. But author is describing the crocodile as this crocodile is a crocodile that existed before the flood came during the time of Noah. And Saurovian means a very large reptile. So here, these two words are very significant because this makes the crocodile or gives the crocodile a very different characteristic. कि ये कोई आम crocodile नहीं है, बहुत पुराना ऐतिहासिक crocodile. Okay. So this crocodile is called as a crocodile that existed before the flood that came in Bible during the time of Prophet Noah. So he is called as a reptile. Crocodile is a species of reptile from antediluvian time. This prehistoric, pre मतलब before historic, मतलब history इतिहास शुरू होने से पहले का ये crocodile, and it's a juggernaut. Juggernaut means, it's again a kind of species or a description of crocodile. Juggernaut means very big, Jagannath wala, बहुत बड़ा crocodile, and he is ferocious, means very dangerous, and formidable also means very bhayanak, horrible. So this crocodile looked very dangerous, this crocodile looked very horrible, and this crocodile is prehistoric. इतिहास बनने से पहले का ये crocodile है. और ये क्रोकोडाइल जो है, ये बाइबल में जो डिस्क्रिप्शन है फ्लड का, उससे पहले का क्रोकोडाइल. सो दिस क्रोकोडाइल इज a very old crocodile, a very dangerous, a very horrible looking crocodile. This crocodile has a vast force in the water. So when it moves, it has a very strong force, propelled by the unimaginable and stable power of its tail. So जब ये crocodile चलता था पानी में, तो उसका पूंछ का इतना ताकत था, irresistible power, uncontrolled power. और उसकी पूंछ में इतना पावर था कि जब वो पूंछ ऐसा ऐसे पानी में करता, तो पूरा दरिया का पानी हिल जाता. Laps by its ripple, so it used to shake the ripple of the waves, and there was a throb in his throat. ऐसे करते रहता crocodile. So the crocodile kept a movement in his throat. His mouth running almost the length of its head. So crocodile का मुंह मेरे तरह नहीं होता, crocodile का मुंह ऐसे लंबा होता है. So crocodile mouth is not like this, it is like this, almost running. Crocodile का मुंह ऐसे होता है. So here his mouth running almost the whole length of the head. And crocodile का mouth पूरा ऐसे head तक है. And that even it had a very evil smile. Evil मतलब negative, भयानक, dangerous look. Now the crocodile smile is smile. Okay.
It is a smile like rabbit. It is a smile like a 1-year child. But we human being has somehow associated the crocodile is bhayanak, dangerous. So we call it evil because crocodile can eat a life. Crocodile can destroy life. So we have associated danger with it. So crocodile smile is called dangerous because it has a power to destroy human life. And the yellow underside up to it tinged with green. So crocodile का पेट का side जो है वो yellow color का है और उसके नीचे का थोड़ा colored with green है. So this paragraph is about how people from in the mountains they used to bring down their लकड़ी मतलब वो जंगल में जो लकड़ी काटते थे टिम्बर को उसको पानी में छोड़ देते थे रिवर के साथ फ्लो होते होते तो पहाड़ के ऊपर से नीचे आ जाता था. तो कुछ लोग जाके उस लकड़ी को वहां से उठा के ले आते थे. तो जहां ये लकड़ी आके रुकता था एक के बाद एक वन यूज्ड टू जॉसल विद द अदर. जॉसल मैंने पुश. ठीक वहीं पे एक क्रोकोडाइल था. ये क्रोकोडाइल किसी से डरता नहीं क्योंकि यहाँ लोग ही कम होते हैं तो डरे किससे. तो ये पानी से बाहर आ जाता था. तो ये क्रोकोडाइल था. इस क्रोकोडाइल का नाम है मतलब स्पीसीज का नाम है मग क्रोकोडाइल. उसका कलर है ब्राउन ऊपर का नीचे है येलो. और इस क्रोकोडाइल को बोला गया है कि इट्स अ प्री हिस्टोरिक क्रोकोडाइल मैंने इतिहास शुरू होने से पहले का ये क्रोकोडाइल. ये वो क्रोकोडाइल है जो बाइबल में एक फ्लड आया था नोआ के टाइम में उससे पहले का क्रोकोडाइल. ये क्रोकोडाइल के पूंछ में इतना पावर है इट कैन शेक द होल वेव्स ऑफ द वाटर. दिस क्रोकोडाइल माउथ is almost half the length of its head and this crocodile has underside इसके नीचे में yellow और हल्का हल्का green है. So this description is very important for getting marks. You need to remember the description of the crocodile. Now this is the background of crocodile. ये crocodile का family background. From the day, perhaps 100 years ago, when the sun has hatched him in the sandbank, he had broken its shell, got his head, and looked around, ready to snap at anything before he was even hatched. From that day, he at once made for the water, ready to provide for himself. He had lived in his brainless craft and ferocity, escaping the birds of prey and great carnivorous fishes that eat baby crocodile. He had prospered, catching all the food he needed, storing them in a food trade in the hole, and in tepid water to live in. Plenty of rotten foods he grew to the strength. To great length, he became very big. So this crocodile perhaps was born 100 years ago. And one fine day when the sun ray was falling on the egg of the crocodile egg hatched. मैंने अंडा crocodile का अंडा ऐसे फूटा. He had broken the shell of crocodile and he came out looking at anything to snap. मैंने जो उसको मिला वो पकड़ ले उसको खा जाए उसको. Ready to snap at anything. So this crocodile, he was probably born 100 years before, and when the egg hatched, it took out his head. तो अपना सर निकालता है, उसको जो मिले उसको पकड़ के खाने का कोशिश करता है. From that day, when he had at once made for the water, मतलब तभी वो पानी में गया था. Ready to fend, मैंने provide for himself. मतलब वो पहला दिन से ही, not like other animal or not like human child कि उसको 1.5-2 साल लगता है even so that it can stand on its own leg and provide for himself. 5 साल लगता है probably, 3 साल 4 साल depending on different kinds of upbringing. So these animal crocodile ये पहला दिन से ही he can provide for himself. How did he provide? He lead by the brainless craft. इसके पास कोई strategy नहीं है, कोई MBA प्रोफेशनल नहीं है, ये कोई मतलब YouTube वीडियो देख के नहीं. ये is a brainless craft. मतलब कोई ब्रेन लगा के नहीं. माने इसके पास एंगर है, ताकत है, जो मिलता है छपट्टा मार के वो बच जाता है और फिर अपने लिए शिकार खोज लेता है. सो क्रोकोडाइल के पास 2 चैलेंज. आई मीन बेबी क्रोकोडाइल के पास 2 चैलेंज. एक, इट हैज टू स्किप द बर्ड ऑफ प्रे. मतलब 2 बड़े बड़े मच्छी अगर आके इसको अटैक करेंगे तो उसको उनसे बचना भी है. ग्रेट कार्निवोरस फिशेस, बहुत मतलब शार्क जैसे फिश जो बेबी क्रोकोडाइल को खा जाते हैं, उससे बचना है. एंड ही हैज सक्सेस्ड इन दैट. ही हैज बीन सक्सेसफुल इन दैट. दूसरा, इसको अपने लिए खाना खोजना भी है. मतलब एक तो कोई इसको ना खा ले, एक काम उसका है. दूसरा, ये किसी छोटे मच्छी को खाए, 2 काम इसका है. सो दिस क्रोकोडाइल हैज 2 वर्क. वन, to save itself from other bigger carnivorous fishes and big fishes, and second, it has to provide food for himself.
तो वो क्या करता था, वो जो भी एनिमल को मारता था एक उसको सड़ा एक जगह रख देता था, स्टोर हाउस फ्रिज जैसा होल में रखता था, सड़ जाता था, उसको आराम से खाता था। और इन टेपिड वाटर में, हल्का गर्म वाटर में रॉटन फूड को खा के अभी ये क्रोकोडाइल एकदम double the length of a man हो गया. So this is how crocodile survive. The crocodile is born on bank of the river. एक दिन उसका अंडा ऐसे पुड़क करके फूटता है, फिर वो अंडा से ऐसे खोल के निकालता है. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये क्रोकोडाइल जिसको पाता है उसको मारने का कोशिश करता है, बचने का कोशिश करता है. इसके पास कोई स्ट्रेटजी, कोई ट्रेनिंग, कोई एमबीए प्रोफेशनल, कोई ब्लैक बेल्ट, कोई व्हाइट बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, कुछ बेल्ट नहीं है. इसके पास अपना ब्रेन है. इनफैक्ट ब्रेन नहीं है, मतलब बिना ब्रेन के खाली झपट्टा मार के ताकत से, वही इसके पास काबिलियत है कि इसके पास कोई काबिलियत नहीं है. मैंने इसके पास कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग, कोई मेथोडोलॉजी, कोई ट्रेनिंग नहीं है. उसके पास क्राफ्ट है, एक मेथड है कि आप बिना ब्रेन यूज किए झपट्टा मारो और जो मतलब अपनी ताकत से जीत लो. तो ये एनिमल क्रोकोडाइल को दूसरे एनिमल से बचना पड़ता है और खुद के लिए हंट करना पड़ता है. Next, now nothing could pierce the. Now this is the description. This is probably the most interesting description of the story. कि क्रोकोडाइल का चमड़ा कैसा होता है. ओके, सो देखिए नॉर्मल लोग तो क्रोकोडाइल पालते नहीं है. नॉर्मल आप लोग में से शायद ही कोई क्रोकोडाइल को गोद में लिया हो. So we have to believe by what the author says, and there is some truth in it. It's not absolute truth, but it's truth. So author is saying, Nora Brook, कि nothing could pierce the thick armored hide. Armored hide मतलब प्रोटेक्टेड हाइड. मतलब क्रोकोडाइल का जो चमड़ा है ये एकदम बुलेट प्रूफ है. बुक में लिखा नॉट इवन बुलेट कैन एंटर इट, इट विल बाउंस बैक. उन्हें रजनीकांत जैसा कि गोली लग के पीछे चला जाएगा, बाउंस ऑफ. सो इवन इफ द राइफल बुलेट कम इट विल बाउंस ऑफ. Only the eyes and the underarms offered a place. तो अगर किसी को क्रोकोडाइल को मारना है तो उसके आंख में मारना होगा या अंडरनीथ, मतलब ऊपर का पोर्शन है, नीचे के पोर्शन में मारना होगा. So the crocodile is so strong, the crocodile is so powerful, its skin is so strong that nothing can enter into it. Not even a bullet can enter into it. Only the eyes and the lower portion of the crocodile has the power or the place where somebody can go and kill it. He well lived in the river, sunning himself from other crocodile. So along with other crocodile, this crocodile also has grown up along with crocodile. तो ये धूप खाने के लिए पानी से बाहर निकलता था. He is also mugger, as well as there are many other types of crocodile called long nose fish eating घड़ियाल्स. तो कोई मगर क्रोकोडाइल है, कोई अलग जात का क्रोकोडाइल है, जैसे फिश खाने वाले घड़ियाल. तो लोग रॉक पे निकलते थे सैंड बैंक में, और वहाँ क्ले जहाँ होता था वहाँ वो चुपचाप बैठे रहते थे. जब कोई एनिमल आता था तो उसको झपट्टा मार के खाते थे, फिर पानी में चले जाते थे. सो द क्रोकोडाइल का जो स्किन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन बुलेट कैन नॉट एंटर इट. क्रोकोडाइल का जो अगर किसी को मारना है तो आंख में मारना पड़ेगा या अंडरनीथ में मारना पड़ेगा. ये क्रोकोडाइल बाकी सब क्रोकोडाइल के साथ, जैसे फिश ईटिंग घड़ियाल लोग के साथ, घड़ियाल मैंने हिंदी वर्ड घड़ियाल, उन लोगों के साथ रॉक और सैंड बैंक में आता था अपने आप को सुखाने के लिए, धूप खाने के लिए. और जब भी कोई कोई आता था तो पानी में जम मार देता था, या तो एनिमल लोग को हंट करने के लिए वो यहाँ से पानी में घुस जाता था. सो द बिग क्रोकोडाइल फेड मोस्टली ऑन द फिश. तो ये बड़ा क्रोकोडाइल अब खाता क्या था? ये बड़ा क्रोकोडाइल फिश खाता है. कभी कोई मरा हुआ डंकी या जिंदा डंकी पानी पीने आता था, या मंकी उन लोगों को पकड़ लेता था. कभी डक खाता था, या कभी कोई पाई डॉग, कुत्ता, ओके, या स्केलेटन ऑफ द काउ, जो मिल जाए खा लेता था. कभी कभी तो मुर्दा घाट में कोई मुर्दा को खा लेता था. तो क्रोकोडाइल हैज अ लॉट ऑफ मल्टी डायमेंशनल फूड हैबिट. वो डियर पानी पीने आती है उसको खा लेता, मंकी पानी पीने आती वो पीछे से क्रोकोडाइल उसको पकड़ लेता. कभी वो कुत्ता को खाता, कभी वो स्केलेटन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग को खा लेता, कभी काउ को खा लेता. तो क्रोकोडाइल के पास कोई मतलब स्पेसिफिक फूड का लिस्ट नहीं है, जो मिले वो खा लेते हैं. तो कभी कभी कोई गंगा घाट से कोई डेड बॉडी आधा थोड़ा सा जला हुआ मिलता, वो खा लेते. सो क्रोकोडाइल जहाँ था उसके बगल में ग्रुप ऑफ फिश लोग, मतलब
चमक रहे थे, और उसी के बीच में एक तो ब्लू जेम था. अब यहाँ से ब्लू बीट का डिस्क्रिप्शन है. इट वॉज नॉट ए जेम, इट वॉज अ सैंड वन ग्लास दैट हैड बीन रोलिंग डाउन इन द रिवर फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो यहाँ एक ग्लास जैसा था. इट वॉज परफोरेटेड, मतलब एक ग्लास जैसा कुछ था जिसमें छेद किया हुआ था. परफोरेटेड मतलब एक छेद किया हुआ था. द नेक ऑफ ए बॉटल परहैप्स, मतलब ये शायद बॉटल का नेक हो या कुछ हो, ग्लास जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो जिसके अंदर छेद किया हुआ. इन द स्टिल नॉइजी विलेज अबव द फोर्ट, फोर्ट मतलब जहाँ झाग होता है, out of the mud house, the same color of the ground, came a little girl, a thin traveling little dressed in an earthen rag. She had worn the rag in two to make the skirt and sari. So ये लड़की का मतलब सीबिया का डिस्क्रिप्शन है. ये सीबिया कहाँ रहती थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, what was her duty, what was her daily rituals, what were her daily habit, उसका रूटीन क्या था, ये सब. So यहाँ से सीबिया के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो बी अटेंटिव. सो सीबिया वाज ए विलेज गर्ल, मतलब सीबिया तो गांव में रहती थी. वो तो सेंट थॉमस चर्च और मारियस डे और सेंट हेलेंस में नहीं पढ़ती थी. सो सी हैड अ वेरी डिफरेंट अपब्रिंगिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस. सो इन द नॉइजी विलेज अबव द फोर्ट, मतलब जहाँ झाग था ऊपर एक माउंटेन है, वहां पे वो रहती थी. उसका घर मर्ड का है. एक थिंग स्टार्वलिंग चाइल्ड, मतलब वो भूख भूख से ना माल न्यूट्रिशन होकर एकदम टिंकी हो गई. ओके. और वो एक वो फटा जैसा कपड़ा पहनती थी. एक ही कपड़ा को फाड़ के ऊपर भी बांध लिए, ओके, नीचे भी बांध लिए. तो एक यहाँ से ऐसे बांध लिया और एक यहाँ से नीचे ऐसे बांध लिया, साड़ी और स्कर्ट जैसा. तो सीबिया का ये डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ रहती थी. वो पहाड़ के ऊपर रहती थी जहाँ एक छोटा सा झोपड़ी था, और वो बहुत ही हंग्री चाइल्ड थी. तो ये सीबिया का डिस्क्रिप्शन है. सीबिया वॉज ईटिंग द लास्ट डे मील. सीबिया कल का खाना खा रही थी. क्यों बासी खाना खा रही थी? क्योंकि उसके आज रोज उसके घर में पकता बनता नहीं होगा. चपाती रैप्ड इन स्मीयर ऑफ ग्रीन चिली एंड रैंसिड बटर, मतलब बासी बटर, बासी रोटी, यही खा रही थी. शी डिवाइडेड द बटर एंड ब्रेड इनटू मेनी मेनी पीसेस, मतलब एक पिट्ठू सा रोटी था, इसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बटर लगा के बहुत सारा पीसेस कर दी. क्यों? ताकि लगे बहुत है, दिल को सुकून मिल जाएगा, बच्चे हैं. सो सीबिया हैड स्टेल रोटी, उन्हें बासी रोटी, बासी बटर थोड़ा बहुत था. उसी को बटर, वहाँ गांव का बटर, बटर ना अमूल बटर, वो गांव वाले बना लेते वैसे कुछ. तो ये उस रोटी को बटर में लगा के छोटा छोटा पीस कर देती ताकि लगे बहुत सारा है. ऐसे खा रही थी, इसका दाम दिख रहा था. अब सीबिया का डिस्क्रिप्शन सुनिए. सी हैड लॉन्ग इबोनी हेयर, मतलब ब्लैक हेयर. सीबिया का काला बाल. And she has great eyes because these eyes are an index to soul. और इसकी आंखों में अभी भी होप था, चमक था, लव था, केयर था, काइंडनेस था, जीने के लिए एक एक्साइटमेंट था. In spite of being poor, in spite of not having food, in spite of not having any benefits of living in a good society, in spite of not having any benefits of living in a good society, her skin was oiled, brown, उसका brown color का skin था, धूप में तो brown ही हो जाएगी. She was a happy child. This is a very important word because most of us would not be happy to replace our place with Sibia, eating rancid butter and stale chapati, and walking on the top of the mountain to bring grass every day of the life with no holidays. So this girl, Sibia, is a symbol that some people in our society can be happy, though they have nothing to be happy for, because happiness is within. It has nothing to do with what you have. It has to do with who you are. And Sibia is a happy child. So if you are happy, you can be happy anywhere in the world. And if you are a man who's like Antonio, you cannot be happy living even in a mansion like Antonio used to live in. So Sibia is happy. Then is an immature. Because at the age of 12, you cannot expect maturity. You can't expect Elon Musk at the age of 12. You can't expect साइंटिस्ट. सो ये इमेच्योर थी. बच्चे तो इमेच्योर ही होते हैं, लेकिन ये चाइल्ड थी और वुमेन थी. दिस वर्ड इज पैराडॉक्सिकल कि हाउ कैन ए पर्सन
be a child and at the same time be a woman? I will explain. Child because he is at the age of 12, 13, छोटी सी बच्ची है तो 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे तो चाइल्ड ही होते हैं। तो वो भी खेलती थी, वो भी गाना गाते गाते कित 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 कर से जाती थी, तो बच्ची थी। By her age she is a child and by her responsibility she is an adult. जैसे वो जो देखिएगा आम बेचते हैं बच्चे छोटे, या वो पोछा लगाते हैं दुकान में, तो वो बच्चे ही होते हैं, लेकिन वो फिर भी एडल्ट होते हैं, बिकॉज उनको कमा के अपने हर महीना अपने घर में भेजना है बहन की शादी के लिए. दिस इज नॉर्मली डन बाय एन एडल्ट. So this child, Nesibia, is adult in terms of responsibility, in terms of our understanding and doing work and rituals and manners. वो 5 बजे 4 बजे उठती है, तो यहाँ लोग 4 बजे सोते हैं शहर के लोग. So she is adult because of responsibility and she is child because of her age. तो ये 12 साल की child woman. So this word you have to learn. ये 4 word. Happy, immature, child woman. So if they ask you to describe Sibia, please don't forget this 4 words, because these 4 words are key words to describe her character. कि वो happy थी. ये happy थी significant इसलिए है because there is nothing in her life to be happy about. No parents, no food, no clothes, no toys, no game, no internet, nothing, almost nothing. She still is happy. And she is immature because at the age of 12, we're not expecting rocket scientist. तो immaturity थी. चाइल्ड तो वो थी कि 12 साल में तो बच्चे ही होते हैं, और एडल्ट थी बिकॉज वो गोबर का वो टिकिया बनाती थी, मम्मी के साथ काम करती थी और घास काटती थी और बहुत बहुत काम करती थी, तो सीजन वुमेन. तो ये बेयर फूट थी. ऑफकोर्स उसके पास थोड़ी ना अजंता का स्लीपर जाएगा गांव में जंगल में. एंड ऑफन गूजी कोल्ड, मतलब बहुत गूजी कोल्ड, मतलब जिसमें रोंगटे खड़े हो जाए, इतना ठंडा है. उस ठंडा में भी ये नंगे पाँव जाती है. नहीं नहीं, फैशन के लिए नहीं. No, no, not because he has fasted, not because he is doing a kind of penance. No, not like all these religious people जो नंगे पाँव चलते हैं तीर्थ यात्रा में. She is doing it because of sheer lack of things. Okay. And she is, book में एक word है starving, मतलब वो भूखे रहती. Not because she is doing a kind of penance like most religious people do, but she is doing because उसके पास खाने को ही नहीं. दुनिया में 2 किस्म के व्रत होते हैं. एक ये धर्म वाले लोग रखते हैं, हिंदू मुस्लिम गुजराती जैनी, सब खाना होता है, फ्रिज में भरे होते हैं, फिर भी दे फास्ट बिकॉज दे बिलीव इन सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. तो ये होता है भूख रहना बिकॉज ऑफ धर्म, गॉड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, स्पिरिचुअल कारण के लिए. और एक भूख होता है बिकॉज आपके पास कुछ है ही नहीं. सिबिया बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी. ये भूखी है नहीं, कोई रोजा नहीं रखी है, उसको कोई जन्नत जहन्नम और मोक्ष नहीं पाना है, पाप पुण्य से वो परे है. वो भूखी है बिकॉज उसके पास खाने को कुछ नहीं. सो कीप दिस इन माइंड. Here there's a word called starveling. So here the starveling word is significant because she is a hungry child because of the situation, because of the adversities of life. So Sibia का डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से सुनिए और क्या खाती थी सुनिए. सिबिया क्या खाती थी? वो चपाती खाती थी, उसमें बटर लगाती थी, वो भी बासी, और वो रोटी को छोटा छोटा टुकड़ा में कर देती थी. सिबिया दिखती कैसी थी? सिबिया का हेयर इबोनी कलर का था. सिबिया का जो स्किन था वो ब्राउन ऑयल था, मतलब ऐसा लगता चमक रहा है. और सिबिया इमेच्योर थी, चाइल्ड थी, लेकिन वुमेन थी. और सिबिया नंगे पाँव घूमती थी, इवन इन द वेरी वेरी कोल्ड वेदर. And Sibia was born to toil. Born माने born, toil माने hard होने. Sibia पैदा ही हुई है ऐसे माहौल में कि उसको सिर्फ मेहनत ही करना पड़ेगा. वो आपके तरह इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करके लाइक का वेट नहीं कर सकती. वो आपके तरह स्नैपचैट में फिल्टर पे फिल्टर लगा के अपने इवनिंग को वेस्ट और इन्वेस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज शी इज born to hard work. Sibia is very different from people that we know, we have seen. We hardly have seen a girl like Sibia. Sibia तो
very hardworking girl. Hardworking because of situation, not because he wants to crack an IPS, but because he have to. She had to. In all her life, she has never owned anything but rag. वो जिंदगी में कभी भी एक कपड़ा नहीं पहनी है. मैंने सिर्फ वो जो ऐसे लुंगी जैसा पहनती है उसको छोड़ के कोई फ्रॉक, कोई ट्यूनिक, कोई स्कर्ट, कुछ भी नहीं था उसके पास. उसके पास कोई she has never owned even an आना. एक आना भी नहीं था उसके पास. Not even a पाई. आना, पाई is the currency of India उस जमाने में. Even a handful of glass bead from the bazaar. मतलब इतना भी पैसा नहीं है कि थोड़ा सा वो कांच का टुकड़ा खरीद के खेल पाए. और वन ऑफ द थिन ग्लास बैंगल दैट केप्ट ऑन द स्टिक, वो गोल गोल चूड़ी होता है जो स्टिक में लगा रहता है, ये भी इसके पास नहीं था. तो ना इसके पास पैसा है, ना पैसा है कि वो कुछ खरीद पाए, ना बैंगल खरीदने का पैसा है. लेकिन डॉटर इज सेइंग वो देखी है फाइन फाइन चीज, देखी है, खरीदी नहीं है. It's like going to the mall and watching a BMW. I mean, those malls which has cars in them, or going to a Gucci shop, watching all those, but only watching it, not buying it. In fact, it is more painful because if you know the fineries of life and if you can buy it, the pain is probably doubled. See, a person who has never seen a car would happily be traveling in a bus. But a person who has been watching cars and looking at cars video all his life, and if he cannot travel in car, then it will pain him. So try to understand the pain of this 12-year-old child. The author is sarcastic. The author is saying उसको पता है कि फाइन फाइन चीजें क्या है. कैसे पता भाई, वो तो इतनी गरीब है, उसके पास तो कपड़ा ही नहीं है ट्यूनिक का, वो तो एक ही कपड़ा को फाड़ फूड़ के पहन लिए, तो कैसे उसको पता है कि what finery is? Listen, she had been with her parents and brother and all the people of the village. She has gone to the railhead and to the bazaar. वो जहाँ रेल का रेलवे लाइन है वहां से वो बाजार गई है, और वहां से सब मूविंग लोगों, कुत्ता के साथ, मंकी जिनके सर पे बहुत ढील होता है उनके साथ, गॉसिपिंग लोगों के साथ, पाम ऐसे लोगों के साथ, वो बुल जिनके गले में घंटा होता टोंग टोंग हिलते रहता है, ये उन लोगों के साथ और डस्ट के साथ ये गई है बाजार, ये गई है मेला में. तो जब ये मेला में गई है तब ये वहां एक से एक चीज देखी. वो एक से एक चीज भी अच्छा, एक्चुअली एक से एक नहीं है, बट सीन फ्रॉम द आईज ऑफ ए ट्राइबल वुमन, these are great things, not for people like you who is watching this video, is probably watching this video right now in his 10,000 rupees mobile phone. But सीबिया के लिए फाइन का डेफिनेशन कुछ और है. तो ये कहाँ देखी है फाइन चीज? अच्छे फाइनरी मतलब बहुत, मतलब एरिस्टोक्रेटिक रईस वाला चीज देखी. कहाँ देखिए भाई? वो अपने पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स और ब्रदर्स लोग, गांव के लोग, वो रेल से लेके बाजार तक गए थे जहाँ बहुत लोग चल रहे थे, कुत्ता भी था, मंकी भी था, बंदर भी था, और बंदर के सर में जी था, लोग गॉसिप कर रहे थे, बार्गेनिंग कर रहे थे, पान का जिसका गिरा रहे थे, और उसके साथ बुल भी था, पूजा होता है ना, वो बुल उसके गले में घंटा आता है, इन सब के साथ चिल्ला चिल्ली के साथ वो गई थी मतलब मेला में. तो मेला में बाजार में एक से एक चीज देखी है. जब वो मेला में, वो बाजार में गई थी, not like mall, don't visualize a mall, you have to visualize a tribal place. मतलब एक बहुत ही जंगली एरिया है, ये जंगल का कहानी है जहाँ एक छोटा सा बाजार लगता था. सो कीप दैट इन माइंड. सो जब वो बाजार में गई थी, so she had paused, amazed before the sweet stall. मतलब जब वो मिठाई का दुकान देखी थी तो चौंक गई थी. So there was brilliant confectionery, एक से एक मिठाई था जिसमें बहुत सारा धूला और डस्ट था, but they smell wonderful. लेकिन बगल में ड्रेन था और वहीं पे लोग बीड़ी पी रहे थे. So सीबिया ये चीज देखी और ऑथर इसको फाइनरी बोल रहा है. So I really doubt कि सच में ये फाइन है, मे बी गरीब लोगों के लिए हो, शायद हो. So सीबिया क्या फाइन चीज देखी है? ये सीन हनी कन्फेक्शंस, माने हनी का बना हुआ मिठाई, और अब्बास मैंने फील्ड में डस्ट, मक्खी भिन 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 धूला पड़ा हुआ है, बगल में ड्रेन है, उसमें से महक आ रहा है, और लोगों का भीड़ भाड़ है, कोई सिगरेट
बीड़ी पी रहा है और ओके, तो ये तो दुकान से हनी नहीं खरीद के मतलब दुकान से कुछ भी खरीद के नहीं खा पाएगी बिकॉज सी हैज नो आना और पाई। लेकिन वो जंगल में रहती थी तो एक बार वो जंगल में हनी टेस्ट की। कैसे हनी टेस्ट किया, या कभी शुगर कैन गन्ना का जूस पिए, तो कभी कोई फ्रूट्स खाई है जो ग्रीन और मैजेंटा कलर का निकला है। तो इसके लाइफ का एक्सपीरियंस यही है कि वो वहाँ रहती थी जंगल में, सो हनी या शुगर कैन का जूस या फ्रूट्स खाइए। फिर वो दूसरे दुकान में गई सीबिया, तो क्या देख रही है, वहाँ एक कपड़े का दुकान है इसमें रोल रोल का कपड़ा ऐसे बड़ा बाजार में होता है वैसे है, और किनारे किनारे में जो मेकर है उसका डिजाइन का नाम है टाइगर हेड, घोड़ा मार का, हाथी मार का, शेर मार का, ये सब गाँव में होता है, तो ऐसा था। ओके, तो ऐसा लग रहा था ना कि ये कपड़ा अभी अभी बन के आया, उसमें वो फैक्ट्री का स्मेल था। फिर ऑथर बोल रहे और भी एक से एक वो चीज देखिए, क्या देखिए भाई, she has seen wonders of the other things to see, क्या satin swing clothes, मतलब एक satin का देखिए, उसमें सिल्वर का डिजाइन था, और एक छोटा सा ट्रे जैसा था जिसको लोग बोल रहे हैं बिरगम्बम से, पेरिस से आया, ऑफकोर्स ऐसे बोलने के लिए बम्बैया बैर, बम्बैया किताब, बम्बैया बैग थोड़ी ना मुंबई से आता है। यहाँ लोग कलकत्ता में बोलते हैं बम्बई का बड़ा पाव, तो बम्बई से बड़ा पाव आया 10 रुपये में, ऑफकोर्स ना, जस्ट इट्स अ सेलिंग स्किल। तो ये लोग गांव के लोग बोलते थे कि ये जो ट्रे आया है ये पेरिस बर्मिंघम यूके से आया। ये साड़ी विथ साड़ी मिलता था, ओके, जिसमें गोल 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 ग्लास का जट डिजाइन था जिसमें आदमी चेहरा देख सकता है। फिर वो काश्मीरी जो खान साहब लोग आते हैं उनके दुकान पे जाइए, वो सब बहुत काश्मीरी सामान बेच रहे थे। ओके, तो ये मतलब एक से एक सामान बेच रहे थे का, मतलब काश्मीरी ट्रैवलर्स लोग थे वहाँ। स्मॉल ट्रे था, जड़ी वाला साड़ी था, गोल गोल ग्लास लुकिंग ग्लास का। ही वॉज showing down the multicolored skills that like cream he had got a little lock chest। एक आदमी था जो ये बेच रहा था, एक ऐसे बॉक्स जैसा था जिसके अंदर बहुत सारा वो टर्कुइज ओवल, मतलब अलग अलग मोती जैसा खिलौना जैसा कुछ था। सो टर्कुइज एंड ओवल दिस आर वेरी एक्सपेंसिव स्टोन्स, बट यहाँ उसका नकली है, मतलब उसका कॉपी टाइप है। वो एक चेस्ट है उसमें भरा हुआ है सब स्टोन। एक बॉक्स है, एक छोटा सा बॉक्स, उसको प्रेस करने से टिंग करके खुल जाता है, और एक चिकन आके कुकड़ू कु बोल के वापस चली जाती है, खिलौना है। सो सीएससी ने बॉक्स जिसमें टर्कुइज स्टोन है, ओपल स्टोन है, और एक बॉक्स है, इफ यू प्रेस इट एक बेल बजती, टोंग, उसमें से एक चिकन निकलती है, कुकड़ू बोल के अंदर चली जाती है। तो ये सब बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए नहीं है बिकॉज यू हैव सीन Insta reel, so which is much more interesting than this. But for a boy, for a girl who has never seen anything in life, any video, any net, any internet, any story, any library, उसके लिए ये शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो। Satin clothes, साड़ी with glass at the border, किनारे में, okay। ये बहुत ही अजीब लगेगा इफ यू सी इट फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव, बट इफ यू सी इट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव शायद ये बहुत अच्छा। इतना छोटा सा खिलौना जिसमें मुर्गा निकल के कुकड़ू करे इज नॉनसेंस फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट फॉर ए चाइल्ड who has been eating rancid butter all her life, this is probably really a wonder। So the author is saying there was no wonder to this world, मतलब ये दुनिया एकदम इस छोटी सी बच्ची के लिए एक वंडरलैंड था। सीबिया फ्रॉम अ बर्थ टू डेथ वाज मार्क्ड फॉर वर्क। सीबिया ये सब देख रही है, वो बॉक्स जिसमें टर्की स्टोन है, जिसमें ओवल स्टोन है, वो बॉक्स जिसमें मुर्गा निकल रहा है, मुर्गी निकल रही है, वो बॉक्स जिसमें एक से एक डिजाइन है, ये सब देख ही रही है, कॉन्फेक्शनरी देख ही रही है। शी कैन नॉट बाय, शी हैज नो मनी। सो ऑथर इज सेइंग कि ये जब से पैदा हुई है जब तक मरेगी नहीं वो काम ही करेगी। और जब से, ऑथर प्रोबब्ली इज हियर एग्जैगरेटिंग बट देयर इज सम ट्रूथ इन इट, कि जब से छोटी थी अभी सही से चल भी नहीं पाती थी तो वही हंस ग्रेन गैदर स्टिक करती थी, वो काऊ डंग को इकट्ठा करती थी, मैंने एक जगह ऐसे खेलती थी उससे। मम्मी बोलती होगी जाओ थोड़ा देर से फॉडर लेकर, फॉडर मैंने वो एनिमल्स लोग जो चारा खाते हैं। सो ये बचपन से ये सब कर रही है। सी हैज बीन कलेक्टिंग कॉर्न्स, सी हैज बीन कलेक्टिंग स्टिक, लकड़ी जलाने के लिए, वो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी, वो गोबर का वो टिक्के ऐसे गोल गोल बना रही है, ओके, वो मम्मी के लिए सामान ला रही है। सो जब से ये पैदा हुई है ऑलमोस्ट थोड़ा बड़ा होने के बाद से अब तक, और ऑथर इज सेइंग जब तक रहेगी तब तक
ऐसे ही, क्योंकि वहां तो एजुकेशन नहीं है, किसी कैन स्टडी एंड बी एन आईपीएस ऑफिसर, एटलीस्ट नॉट इन दैट टाइम, or she can be an engineer, or she can pass WBCS. So there's no possibility for her. So she will be born and she will die as a hardworking woman in a tribal village. She was going, so now the author is coming back to the present time. कि अभी सीबिया जा कहाँ रही है, कर क्या रही है सीबिया? आज सीबिया अपने मम्मी लोग के साथ पहाड़ के ऊपर घास काटने जा रही है। एक बहुत बड़ा बंडल है, उसमें घास काट के लाएगी और बुलक काट में रख देगी, फिर वो बिक्री होने के लिए जाएगा रेलवे स्टेशन, वहां से उन लोगों को पैसा मिलेगा। So listen. So Sibia was going with her mother and other women to get paper grass from the cliff to the river. When you had enough of it, बहुत जब घास कट जाता है तो बंडल बना लेते हैं, फिर वो बंडल को क्या करते हैं, बुलक कार्ट में रख देते हैं। बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी में रख देते, वहां से कोई उसको पेपर मिल तक ले जाता। और ये वुमेन लोग जो दिन भर काम करती है और वहां पे गद्दा पे ऐसे बैठे सेठ जी हुक्का पीते पीते, इधर रखो उधर रखो, ऐसे करते रहते हैं। So here the author is probably trying to say that these women who worked hard the most got the least amount of payment. So these women who got maximum, they got the minimum benefit, and these Sethjis who did almost nothing, they got everything. So here the author is speaking in a socialistic mode that these women are, it seems, are exploited. Because they are cutting the grass, bringing it, and then putting it on the bullock cart, then sending it to the railway lines जहाँ से loading होगा, but still they are toiling all day and getting almost nothing, एक दो आना। और ये सेठ जी, these agents who sit on the cushion, मैंने गद्दी पे बैठते हैं, हुक्का पीते हैं। But लेकिन CBI is not socialist, not a capitalist, not communist, not anything of that kind. CBI is just a girl. This thought के सेठ जी को कितना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, this thoughts is not troubling CBI. However, as she skipped down her sickle and homemade fork beside her mother, so CBI वो sickle लेके जिसके घाट काटते हैं और एक fork है, मतलब it's an instrument to cut grasses, ऐसे करके होता है, ऐसे काटते हैं। तो वो अपनी मम्मी के साथ वो जा रही है पहाड़ पे to cut grass. She could speak on the way out, but not on the way down. So while she is going along with the mother goes up and she plays and then again follows her. So this is possible while going up, because while going up, you do not have the bundle of grass. But while coming, you cannot play because on your head is a bundle of grass. So such thought के लोगों को क्या मिल रहा है, किसका प्रॉफिट ज्यादा है, किसका प्रॉफिट कम है, this thought did not trouble CBI. CBI is just jumping and playing along with the sickle and hay fork along with the mother. So while going up, you can skip along with other people and can play, but while coming down, you can't play because on your shoulder is a huge bundle of grass. Of course, grass is not very heavy, but for a child and such a big bundle would become very troublesome. Now these women, what they do wear, some of these women, they wear necklace made of seeds, lal beach में seed, and the sign is scarlet seed, मतलब एक seed होता है उसका ये बी बना के ये लोग पहनते हैं, क्योंकि इनके पास ज्वेलरी नहीं है तनिष्क का, and they can't order online because there is no internet and they have no money. So these women, they wear beaches, जंगल में बहुत सारा सीड मिलता है, उसको ये लोग बना के यहाँ जंगली औरत लोग पहन लेती है, हाथ में, पैर में, गले में, ये उनको अच्छा लगता है। It is best to have new necklace every year, और ये जंगल में बहुत मिलता है ये सब सीड, तो सीड को छेद कर करके एक सूता में बना के नेकलेस पहनते, हर साल एक नया पहन लेना अच्छा बात है। लेकिन अगर आपको सीड का नेकलेस बनाना होगा तो नीडल चाहिए। It was best to have new necklace every year instead of wearing the faded one of the last year. CBI was making one too. CBI भी एक बना रही थी अपने लिए नेकलेस। इस बच्चे के पास तो और कोई खिलौने नहीं है ना। How nice it is to be to hear those rattling sound, the swish sound. वो ऐसे यहाँ खेलने में ना, मतलब वो यहाँ गले में होता है तो ऐसे करने में आवाज होता है, so अच्छा लगता है। She first along with lots of necklace, मतलब उस यहाँ हर्ट करता था नेकलेस, चुभता था, लेकिन उसको अच्छा लगता था हल्का हल्का। But each seed is hard as stone, मैंने उसको पहले सुखाना पड़ता था, फिर उसको ड्रिल करना पड़ता था, नीडल को गर्म करके छेद करके सूता में बांध देना पड़ता था। लेकिन एक ही नीडल था, एंड दैट इज स्नैप, मैंने लॉस्ट।
सो अब जब तक एक निडल ना आ जाए पूरा फैमिली में, तब तक तो नेकलेस बन नहीं सकता. So here is author saying a very strong statement that this woman and the family of this Sibia and the family, they are so poverty stricken that they do not even have the smallest amount that is needed to buy a needle, so that with the needle they can make a hole in that lal lal beach seed और एक necklace बना सके. So such is the poverty of Sibia. Sibia cannot even buy a needle, or her family even cannot buy a needle, and cannot even make a necklace for Sibia. So और स्ट्रिंग और ग्लास इसके पास कुछ भी नहीं था, कोई एंकलेट नहीं था, कोई मतलब कुछ भी नहीं था. ऑल गॉर्जियस डैजल ऑफ बाजार और डेकोरेशन, वो स्ट्रिंग, वो बैंगल, वो नोज रिंग, वो सब इसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ डेकोरेशन देखने के लिए था. Chattering as they went, the woman followed the dusty track of the river. So ये woman लोग बात करते 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 जाती थी. On their way, they passed a गुज्जर encampment. मतलब कैंप लगा हुआ था. एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसका नाम है गुज्जर. तो गुज्जर लोग का एक कैंप है. गुज्जर लोग का एक कैंप है. तो यहाँ वहां पे ये लोग, जब ये सब औरत लोग जा रही थी, सिबिया के फैमिली और ये लोग, तो on their way they saw this Gujjar camp where the nomadic grazier would live for a time until the animals had perhaps finished all the grazing. So ये गुज्जर encampment एक जगह कैंप करता है जब तक कि वहां उन लोग के एनिमल को ग्रास मिले, या जब तक कि वहां वो लोग अपना मतलब मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल घी, बटर ये सब बेच पाए, तब तक वो लोग वहां रहते हैं. So on their way they found Gujjar camps. ओके, वेयर नोमैडिक ग्रेजियर, मतलब इनका कोई, ये जो गुज्जर कैंप है ये नोमैड्स है, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर रहने का घर नहीं है. ये एनिमल्स लोग को ग्रेस कराते हैं, और एनिमल्स लोग को ग्रेस करा के मतलब अपने वो गाय से, गोट से जो दूध निकलता है वो बेचते हैं. कभी कभी एनिमल्स लोग को भी बेचते हैं. ओके, और फिर बटर, वाइट बटर, मिल्क ये सब बेचते रहते हैं. और जब तक ये पॉसिबल है वहां रहते, फिर किसी दूसरी जगह जाते क्योंकि वहां का ग्रास खत्म हो जाता है, फिर एक नया जगह जाते हैं where the animal can eat the grass. और perhaps the cattle killing tiger was making a nuisance, या कभी कभी वो लोग इस जगह को छोड़ते हैं क्योंकि वहां टाइगर आ जाता है, तो टाइगर आके उनके एनिमल्स को खाने लगता है, तो वो जगह को छोड़ना पड़ता है. या उस इलाके में अब उनका सेल्स नहीं होता है बगल वाले गांव में, तो नए इलाके में जाते हैं. So Sibia was along with this woman. She was passing through that camp of Gujjar women. So she glanced at the Gujjar woman as she passed. So इनका डिस्क्रिप्शन है कि वो ट्राउजर जैसा टाइट ड्रेस पहनते हैं, पैर में एंकल पहनते हैं, और सिल्वर रिंग्स पहनते हैं. मैंने वो पैसा को गला के रिंग बनाती है, उस जमाने में सिल्वर का था. Okay. One of them was clinging a stick against the big घड़ा. उनके पास बहुत सारा घड़ा था, मैंने पॉट, मैंने हिंदी में घड़ा, वही हिंदी में घड़ा. तो ये लोग, बहुत सारी वुमेन लोग कैंप में जा रही थी, ठीक है. विच वन वाज वेर एम्प्टी, मतलब जो लोग खाली खाली घड़ा लेके जा रही थी, लोग पानी लाने जा रही थी. तो गुज्जर में जो मेन और बच्चे थे, ये लोग कहाँ थे, ये लोग बाजार गए थे, वो दूध का प्रोडक्ट, वो मिल्क, घी, ये सब बेचने गए थे. ठीक है. वन और टू बफलोज वर स्टैंडिंग. ओके, ग्रेट वेट नोजेस एंड मूविंग जॉयस. कुछ गाय खा रहे थे, उनका हड्डी था, बिकॉज उनको खाना नहीं मिलता है. तो गुज्जर वुमेन लोग का ड्रेस का डिस्क्रिप्शन है, ट्राउजर पहनते हैं, टाइट रिंकल्ड एंकल में वो मतलब पायल जैसा कुछ पहनते हैं. ओके, रुपया को गला के. ओके, फिर उनके पास बहुत सारा घड़ा होता है, वो रिवर में जाते हैं, पानी भरते हैं. और उनके यहाँ मेल मेंबर्स है, वो सब गांव गए हैं, बाजार गए हैं, अपना अपना वो दूध, मक्खन ये सब बेचने. उनके पास कुछ कुछ बफेलो है. तो ये गुज्जर वुमेन लोग है कौन, ये लोग जंगली है. सिबिया भी जंगल में ट्राइबल वुमेन ही है. और सेंचुरी से ये ट्राइबल लोग के लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया. इंटरनेट 5G 4G 1G इनसे कोई लिंक नहीं. टेक्नोलॉजी हैज स्टिल नॉट गॉन देयर, एजुकेशन हैज स्टिल नॉट गॉन देयर, एटलीस्ट व्हेन द स्टोरी वाज रिटन. सो सेंचुरीज से दे हैव बीन लिविंग हियर, गेटिंग देयर लाइवलीहुड फ्रॉम ग्रास. मतलब यही करके उनका रोजी रोटी चलता है, ग्रास से. ट्रीज मैंने ग्रास को एनिमल को देते हैं, एनिमल से दूध निकलता, वो करके. So they scattered their food, so they stored in the huts. जब
एनिमल्स लोग को ये सब बेचते भी हैं, कभी कभी उनसे ज्वेलरी खरीदते हैं. They were men in the wandering pastoral. मतलब इनको देख के लगता है कि आदिम युग के स्टोन एज के मैन है. And they do not know cultivation, they do not know farming. So ट्राइबल वुमेन लोग जो है वो ऐसे ही रहते हैं, कोई घर नहीं बनाते, वो बिना घर के जगह जगह जाते रहते हैं, और जो अपने दूध मक्खन एनिमल को बेच के जो मिलता है उससे वो कुछ सिल्वर ज्वेलरी खाना वाना खरीदते हैं. और ये लोग कभी खुद से कल्टीवेट नहीं करते हैं. सो दे आर nomads, they keep on moving, and their men are compared to the men of Stone Age. As now was the river twinkling with trees, sunlight beyond the dark trunk, they could hear a rustling along. तो जब ये जो लोग जा रहे थे तो पत्ता का आवाज सुनाई दे रहा था. The woman came out of the shore and met for the stepping stone. तो एक रिवर है, रिवर को ये वुमेन लोग क्रॉस कर रही है. मतलब ये जो सीबिया के साथ वुमेन लोग पहाड़ पे जा रही है, वो घास काटने ये वुमेन लोग जा रही है. They had to laugh and bicker, मैंने joke about as they approached the crowd. मैंने भी लोग चिल्ला चिल्ली करके जा रहे थे. क्यों? तो स्कर्ट को थोड़ा उठा के पानी में भीजे ना, एक दूसरे का वो सब सिकल एक दूसरे में लड़ रहा है, फॉर्क एक दूसरे में लड़ रहा है, ये लोग चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, क्योंकि उन नॉइस से क्रोकोडाइल भाग जाता है. So they were people who were मतलब women, they were shouting and quarreling and जोर जोर से चिल्ला के बात करे ताकि क्रोकोडाइल भाग जाए. The bigger crocodile did not move. मतलब लेकिन ये मगर क्रोकोडाइल did not move. वो चुपचाप एक कोने में पड़ा था. Here they had to climb. यहाँ से अब उनको पहाड़ पे चढ़ना है. ओके, और थोड़ा स्लाइड्स अवे होके जहाँ भी पैर मिल रखने का जगह वहां रख के ऊपर चढ़ना है. Down below the cliff, the mountain, there was a river pouring powerfully. बहुत तेज वहां का मतलब पानी का धारा बहुत तेज था. It was a cold cliff spreading into the warm shallow. मतलब वहां पानी का जो डेप्थ था वो कम था, शैलो था. Lit by kingfisher, यहाँ एक से एक बर्ड थे, यहाँ टर्टल थे, यहाँ मशीर एक नेम ऑफ एन एनिमल वो था. क्रोकोडाइल लोग भी थे. Sometime you could see them lying, the crocodile or mashir on the ground outside the water. Where CBA was working, wind came across hundreds of miles. जहाँ CBA काम कर रही थी बहुत ऊंचा था, तो वहाँ बहुत उसको मतलब हवा लग रहा था. She could look down at the river. So ऊपर से ना ऐसे झांकने से लगता था कोई चिड़िया नीचे झांक रही. So CBA felt like a bird when the top of the mountain. She was looking down at the river. और river बहुत flow हो रहा था, बहुत अच्छा हवा आ रहा था, तो CBA felt like a bird. Although she had not dared to stop for a moment, and जब तक मम्मी देखती थी वो रुकती नहीं थी. लेकिन वो इमेजिनेशन में हर जगह जाके देखिए, रियल में तो हर जगह नहीं गई है, बिकॉज द मदर विल नॉट अलाउ द चाइल्ड टू गो एनीवेयर, बट इन हर इमेजिनेशन दिस गर्ल सिबिया हैज गॉन एवरीवेयर. ओवर द ब्राइट वाटर एंड गोल्डन एयर टू द बैंक वेयर शी हैड प्लेड एज अ चाइल्ड. तो ये उड़ के हवा में, मतलब इमेजिनेशन के दुनिया में. तो ये ऊपर से इमेजिन करती है, नीचे चले गए वहां वो बचपन में जहाँ खेला करती थी उस जगह को इमेजिन कर लेती सिबिया. So in these small caveats in a small cave, जहाँ पहाड़ था वहां ना वो बाउल बना दिए, मिट्टी का एक प्याला जैसा बना दिए. तो जा जाके एक बार देख लेती कि वहां मिट्टी का प्याला है कि नहीं. बच्चे लोगों को सब इंटरेस्ट होता है. So this small girl of 12 year called Sibia, she had made small bowls of clay, मिट्टी का, मड का. उसको सूखने के लिए वो केव के अंदर छुपा के आई है. तो जाके देख लेती थी. एंड दे लुक फाइन उसमें. ओके, तो जब वो सूख जाएगा तो उसमें वो डिजाइन बनाएगी. चाइल्ड द शार्प वर्ड ग्लेयर ऑफ द मदर. तो जब भी वो वहां जाती तो मम्मी बोलती ए बच्चा, तो फिर मम्मी उसको वहां से ले आती, मतलब उसके केव से बाहर लाती. बट एट लास्ट इट वॉज टाइम टू गो बैक. मतलब अब वहां से पहाड़ से नीचे उतरने का टाइम आ गया. द लोडेड वुमेन सेट आउट टू क्रॉस द रिवर. और ये वुमेन को अब रिवर क्रॉस करना पड़ेगा. सिबिया हंग बैक. सिबिया थोड़ा लेट कर रही है. सब औरत लोग जा रही है, सिबिया थोड़ा लेट, मतलब शी इज वेटिंग के सब कोई जाए तब. शी जस्ट वेडल अ बिट. वहाँ यहाँ खेल लेती, वो कप का प्याला देख लेती. ओके, उसमें पेंटिंग हुआ है कि नहीं, जो डिजाइन बनाई है वो हुआ है कि नहीं. मोस्ट वुमेन वर टायर्ड नाउ बिकॉज, बट दे स्टिल वर टॉकिंग. उनके सर पे लोड था. दोज इन फ्रंट वर साउटिंग एट द बैक. मतलब ये पहले जो लाइन में जो सबसे पहले औरत थी वो पीछे वाले से चिल्ला के बात करती थी. इससे फायदा ये हो कि क्रोकोडाइल जो है वो भाग उग जाए.
दे क्रॉस द रिवर सेफली एंड वेंट इन द पार्ट जहां से जंगल था. फिर वहां एकदम ये इलाका साइलेंट हो गया. सीबिया लास्ट में आई. स्टेपिंग स्टोन रिवर था, रिवर में छोटा छोटा स्टोन था, तो सीबिया एक स्टोन को जंप करके दूसरे में जा रही थी. और उसके सीबिया के पीठ पे वो बहुत बड़ा ग्रास का वो बंडल था. उसका आर्म स्ट्रेच था और पीछे वो हे फॉर जिसे वो घास काटती थी वो सब उसके यहाँ ऐसे कपड़ा में ऐसे फंसाया हुआ था, कुछ इधर फंसाया हुआ था. और वो साड़ी को ऐसे बंडल करके मतलब पैड मतलब ऐसे खोस खास के वो जा रही थी. सी वॉज हाफ वे, अभी वो आधा रिवर क्रॉस की थी. विद ओके, तब तक एक वो बहुत बड़ा स्टोन पे अपना वो सब कुछ रखती थोड़ा सांस लेने के लिए. ब्रीदिंग ऑन द फॉर एट द सेम मोमेंट. अभी ये हुआ ही था, तब तक एक गुज्जर वुमेन, वही जो गुज्जर ट्राइबल वुमेन जिनका घर नहीं होता है वो लोग, एक गुज्जर वुमेन आई 2 घड़ा लेके. वो किनारे में पानी था लेकिन किनारे में पानी थोड़ा गंदा था, तो सोचिए हम थोड़ा बीच में रिवर के बीच में जाएं और पानी जहां थोड़ा ज्यादा मतलब क्लीन है वहां से ले, इन ऑर्डर टू गेट सम वाटर टू क्विकली फील द घड़ा. घड़ा मैंने वही मटका. वो स्टेपिंग स्टोन तक आई. सी वॉज विदिन ए यार्ड ऑफ द क्रोकोडाइल. अभी वो क्रोकोडाइल के पास ही पहुंची थी. पानी में क्रोकोडाइल था. सो क्रोकोडाइल लंग्स एट हर, मतलब क्रोकोडाइल से मुंह खोल के उसके पैर कैसे पकड़ ली. उसको इंग्लिश में बोलते लंज्ड. See, the crocodile came out of the water. Okay, his livid, माने very powerful, angry jaw. It's called a jaw. jaw में पकड़ लिया. And it teeth flashing, and he lashed at her leg. माने उसका teeth से चमक रहा था और उसके पैर को पकड़ लिया. The Gujjar woman screamed. उसका दोनों पॉट जो था घड़ा वो पानी में गिर गया और पानी में बह गया. सीबिया देख रही है 2 घड़ा जा रहा है. The Gujjar woman reconciled from the crocodile, but his jaws closed on her. तो गुज्जर वोमेन जो थी उसके पैर को ऐसे पकड़ ली. गुज्जर वोमेन जो थी उसके पैर को पकड़ ली. At the same moment, she slipped and fell on the bone breaking stone. तो सिबिया जो थी उसके पैर को पकड़ ली और जब वो उसके पैर को मैंने सिबिया जाके उस एनिमल पे अटैक करेगी. So the Gujjar woman was attacked by Sibia. So the woman screamed and dropped both her ghadas, and the ghada went along with the water. The Gujjar woman reconciled from the crocodile. The crocodile attacked, and the Gujjar woman still was coming to its senses. But the jaw caught her legs. मतलब crocodile ने गुज्जर woman के पैर को पकड़ लिया. At the same moment she slipped. मतलब वो वहां से slip वो गिरी और बोन ब्रेकिंग बहुत बहुत बड़ा स्टोन पे, और वहां पे एक टिम्बर था लकड़ी, उसको वो जोर से पकड़ ली. और द लॉग जैम्ड बिटवीन द 2 बोल्डर्स. और ये 2 लकड़ी था, ये बहुत बड़े बोल्डर्स के बीच में फंस गया. विद द वुमन स्टिल क्लिंगिंग टू इट. मतलब बहुत बड़ा बड़ा स्टोन है, उसके बीच में एक लकड़ी है, उस लकड़ी को ये गिज्जर वुमन पकड़ी है. और क्रोकोडाइल इज पुलिंग द लेग ऑफ दैट वुमन एंड द क्रोकोडाइल इज बैंगिंग द टेल. बैंग 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 बैंग, पानी में छप छप आवाज कर रहा है, स्प्लैंचिंग हिज टेल. तो क्रोकोडाइल का जो पूंछ है वो पानी में गिर गया है. पानी में ऐसे ऐसे वो पटक रहा है. क्रोकोडाइल जो है वो वुमेन को टान रहा है और वुमेन जो है वो लकड़ी को टान रही है, और लकड़ी 2 स्टोन में फंसा हुआ है. देयर आर 2 स्टोन्स एंड इन द स्टोन उसमें फंसा हुआ है एक लकड़ी, बहुत बड़ा लकड़ी. उसको गुज्जर वुमेन पकड़ी है और गुज्जर वुमेन का पैर ये क्रोकोडाइल पकड़ा है, और क्रोकोडाइल अपने पूंछ को पानी में धम धम मार रहा है, स्प्लैशिंग इट्स टेल टू कैरी ऑफ इट टू द वाटर. तो क्रोकोडाइल चाहता है कि इसको यहाँ से ले जाए पानी से और फिर ले आके खा ले. तो चारों तरफ उस वुमेन के बॉडी से खून निकल रहा था. इतने में सिविया दौड़ी फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर. एक स्टोन से 2 स्टोन वो दौड़ी, दौड़ दौड़ के गई. सी विदाउट लुकिंग एट द गैप, कि गैप सही से बैलेंस हो रहा है कि नहीं, पानी में गिर नहीं रही. सिविया went jumping from one boulder to another boulder where the river crossed. Okay, जहाँ बहुत ग्लास जैसा रिवर था, बहुत गहरा पानी था, वहां भी चली गई. बट सी केम ऑन विंग्स. मतलब ऐसा लग रहा था उड़ के आ रही थी. विदाउट थिंकिंग अबाउट हर सेल्फ. मतलब सी एक सेकेंड के लिए वो सोची नहीं कि मेरा क्या होगा. सी जम्प्ड एंड केम ओके बिसाइड द स्ट्रीकिंग वुमन.
In the boiling bloody water, the face of the crocodile, उस वुमेन के पैर को क्रोकोडाइल ऐसे पकड़ के टान रहा था और वुमेन अपना पैर टान रही थी. Okay. Her eyes rolled on Sibia. तो क्रोकोडाइल सिबिया को देखा, सिबिया क्रोकोडाइल को देखी, तो सिबिया सोची कि अगर एक पूंछ हमको अगर मारेगा तो सिबिया तो गई ही. फिर क्रोकोडाइल अपना पूंछ को ऐसे 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 वो मार रहा था, तो सिबिया को डर तो लग रहा था. 12 साल की औरत लड़की को क्रोकोडाइल से तो डर लगेगा. ओके. ही स्ट्रक अप द वाटर 20 feet, फेल्ट लाइक ए सिल्वर चेन, मैंने उसका बॉडी एक बहुत बड़ा सिल्वर चेन जैसा था. द रॉक जम्प्ड, मतलब वैसे ऐसे कर रहा था, रॉक हिल जा रहा था. बट इन द हीरोइज्म ऑफ जंगल एज कॉमन एज अ ट्री, सीबिया डिड नॉट हेजिटेट. सीबिया के पास सोचने का, इंश्योरेंस कराने का टाइम नहीं था. जंगल में जैसे एक थॉर्न अपने आप उग जाता, सीबिया का भी बहादुरी अपने आप हो गया था. सी एम्ड एट द रेप्टाइल आइज, वो रेप्टाइल के आंख पे अपना वो फॉर्क जो जिससे वो घास काटते हैं ऐसे करके मार दी, और इतना जोर मारी और ऐसे टान दी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक कट गया. With all the force of our bodies to drop the hoe fork in the eyes, मतलब वो हे फॉर्क जो होता है घास काटते उसके यहाँ पे लगा दिया, और एक प्रॉन्ग जैसे एक साइड होता है वो यहाँ काटते 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 उसके चिक तक चला गया. द क्रोकोडाइल reared up करके छोड़ दिया. It half his lizard body went up the river, ऐसे पूरा कट गया तो आधा बॉडी जो दिख रहा था वो पानी में गिरा, फिर उसका टेल गिरा, एंड देन ही क्रैश्ड बैक, फिर वो पूरा ही पानी में गिरा इन द वाटर, और वो झाग के साथ, फोम के साथ क्रोकोडाइल डिसअपियर्ड हो गया. क्रोकोडाइल का बॉडी यहाँ से वो काटते रही, टानते रही, और टानते टानते यहाँ तक आई तो आधा कटा बॉडी गिरा, फिर वो पूरा बॉडी पानी में धड़ाम से एक्सप्लोड हुआ, फोम मने झाग में वो गायब हो गया. He would not die quickly, not yet, but he would die within few days. क्योंकि उतना बॉडी कट गया तो मर ही जाएगा. ओके. सो अब उसके बॉडी में गैस हो जाएगा, वो सब केमिकल रिएक्शन, वो फट जाएगा. देन परहैप्स यू वुड बी फाइंड अपसाइड डाउन, फिर वो मर जाएगा, फिर उसका बॉडी उल्टा होके दिखेगा और पूरा उसके मुंह में पस रहेगा. पस मतलब वो जो निकल जाता है घाव से, सो उसका बॉडी सड़ जाने के बाद वैसा दिखेगा. सीबिया गॉट हर आर्म्स अराउंड द, सीबिया उस औरत को पकड़ी और टान टान के उसको गुज्जर एनकैंपमेंट तक ले गई. तो गुज्जर कैंप में कुछ लोग थे तो उसको एक स्ट्रेचर जैसा कुछ पे रख के उसको ले गए. फिर सीबिया वापिस आई, क्योंकि उसका यहाँ तो सिकल था, उसका फॉर्क था, उसका वो इतना ग्रास था, वो तो ले जाने होगा, बिकॉज दे आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट एफोर्ड टू बाय अनदर सिकल एंड फॉर्क, नॉट लाइक अस. एक छाता हरा देते दूसरा खरीद लिया. सीबिया इज वेरी पुअर. द फॉर्क वॉज लाइंग इन द रिवर, तो सीबिया जब वापिस आई अपना फॉर्क, अपना वो घास काटने वाला लेने के लिए, तो लकीली जब वो पानी में झांकी तो सी सॉ द ब्लू बीड, गोल गोल मोती जैसा था, उसको दिखा. नॉट ब्लू नाउ बिकॉज द सन रेज इज गॉन, बट इट वाज मूविंग इन द मूविंग इन द स्ट्रीम. तो हाथ लगाई सीबिया, और हाथ लगाने के बाद वो कोल्ड वाटर से पहले में तो उसको रिफ्रैक्शन में समझ में नहीं आया कहाँ है, पहला बार में नहीं मिला, दूसरा बार में वो पानी के अंदर हाथ लगाई और ब्लू ब्लीड को निकाल दी. देयर इट ले इन हर हार्म, इन हर हैंड, इन हर पाम, इट परफेक्ट पीस, और उसमें एक छेद भी किया हुआ था. ऑल आर हार्ट वेट, तो वो सोच रही है कि इससे तो मेरा वो नेकलेस बन सकता है, खेलने के लिए खिलौना हो गया, मतलब शी इज वेरी हैप्पी, हर हार्ट वेंट अप इन हैप्पीनेस. आफ्टर अ बिट शी ट्विस्टेड इट एंड स्कर्ट में ऐसे मोड़ के रख ली. एंड शी वुड नो इट, क्योंकि यहाँ बॉडी में टच करता रहेगा तो उसको पता रहेगा कि गिरे ना, सो वो साड़ी में मोड़ के घर ले जा रही है. She picked up her fork and sickle on the grass and all went on. She is now happy. Happy. So Sylvia is now happy because she has achieved what? Blue bead. Of course, blue bead has no significance for you and me, but it is a significant thing for a child because it's a symbolic reward of courage. So वही नंगे पाँव में smudged on the, मतलब नंगे पाँव में जा रही थी उस रास्ते में जहाँ स्नेक का पाथ का रास्ता था, स्नेक मार्ग था. There was the malaria mosquito all around, चारों तरफ मलेरिया मॉस्किटो था. And this track was used at the night by old dangerous मखना elephant. ये रास्ता में स्नेक का मार्ग था, यही रास्ता में टचलेक एलिफेंट लोग जाते थे. बट सीबिया को अभी डर नहीं लग रहा था, रात हो चुका था, आसमान में तारे दिख रहे थे, बट सीबिया was not afraid. So on her way back home, her mother said, her mother was very angry. Okay, and she said scolding, I did not see you come to
तो वो मम्मी उसको डांट रही है, आई डिड नॉट सी टिल आई वाज होम दैट यू वर देयर, आई थॉट समथिंग हैज हैपेंड। मम्मी बोल रही तुमको रास्ता में कहीं देखे नहीं, अभी देख रहे, कहाँ थी तुम, कुछ हुआ था? सिबिया बस्टिंग विद अ स्टोरी, सिबिया अपना पूरा कहानी बताने लगी, बोली हाँ मम्मी कुछ हुआ था, यस इट डिड हैपन, एंड देन शी सोल्ड हर ब्लू नेकलेस। सो सिबिया के लिए ये नेकलेस जो है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, इससे कोई परमवीर चक्र नहीं मिलेगा, इससे कोई पद्म भूषण पद्म विभूषण नहीं मिलेगा, कोई भारत रत्न नहीं है, बट इट इज अ चाइल्ड वे ऑफ फीलिंग रिवॉर्डेड, किड्स कैन फील हैप्पी एट एनीथिंग। सो दिस स्टोरी इज अबाउट courage. And courage is not related to gender. Sibia is a woman. And courage is not related to age because Sibia is 12-year-old. And courage is not even related to rich or poor. Sibia is poor. And courage is not related to muscle. Sibia is very starveling. And courage is not at all related to education because Sibia is uneducated. So here, the author is saying that courage can be found in any kind of situation, in an ordinary place like a jungle, in a very mundane place like a tribal woman, kahin bhi bahaduri ho sakta hai. And we as a human being should celebrate the courage of this 12-year-old child. So if you have liked this video, I request you to share it with people who would get benefit out of it. And if you have any question, please write in the comment box. Thank you for watching the video.